Delhi, as the capital of India, serves as a center for policy making, international diplomacy, and national political discourse. Now, all eyes are on February 5th, when Delhi votes for its next state government. Kalkaji Assembly constituency is one of the 70 Delhi Legislative Assembly constituencies in the National Capital Territory in northern India. Kalkaji in Delhi got its name after the Kalkaji temple itself, a temple which is dedicated to goddess Kali. The present Kalkaji constituency came into existence in 2008 as a part of the implementation of the recommendation of the Delimitation Commission of India, constituted in 2002. In 2025, the constituency is witnessing a battle between Chief Minister Atishi, BJP's Ramesh Bidhuri, and Alka Lamba of the Congress. We are here in Kalkaji with Ramesh Bidhuri for this episode of Road Stop on News X. Kalkaji is a part of South Delhi Lok Sabha constituency, along with 9 other assembly segments, namely Bijwasan, Sangam Vihar, Ambedkar Nagar, Chhatarpur, Deoli, Tughlakabad, Palam, Badrapur, and Mehrauli. The total population of Kalkaji is 110,850. Over 98% of the population in Kalkaji lives in urban areas with lesser rural representation. Scheduled castes and scheduled tribes make up to approximately 7.3% of the total population. The religious composition includes 86.8% Hindus, 11.9% Muslims, and 0.8% Christians. In 2020, about 1.47 lakh voters were registered, out of which 57.51% turned up to vote. The Kalkaji Assembly constituency has seen representation from multiple political parties over the years. The BJP won the first election in 1993 with Purnima Sethi, followed by Congress victories in 1998 and 2003 under Subhash Chopra. The constituency was later represented by Harmeet Singh Kalka of the Shiromani Akali Dal in 2013. In 2015, Avtar Singh of the Aam Aadmi Party claimed the seat, and it has since been retained by AAP, with Atishi winning it in 2020. Kalkaji, a vibrant assembly constituency in the national capital, is a complete blend of history, spirituality and modernity. Talking about the famous places, then at the heart of the Kalkaji assembly, there is a Kalkaji Mandir that attracts a lot of devotees regarding their prayers, their beliefs in Navratri especially. And behind me, one of the famous places is the Lotus Temple that is nearby the Kalkaji Mandir, with its stunning lotus-shaped architecture, which offers a serene space for meditation and also global unity. But apart from that, history enthusiasts can also go and visit the Tughlakabad Fort. Apart from that, there is a very famous Nehru Place market which offers a lot of modernity to the people who visit this constituency. So yes, it is a complete blend of history, spirituality and also the modernity, because the Nehru Place market is one of the greatest IT hubs which offers a lot of good places to eat, and also the IT people can be found there. So we can say that altogether Kalkaji offers and encapsulates a lot of things for the people living here and also for the tourists. Ramesh Bidhuri is a former member of the Lok Sabha representing South Delhi. He has also been an MLA for 3 consecutive terms from 2003 to 2013. Throughout his career, he has held several important positions in the Bharatiya Janata Party, such as General Secretary of BJP Delhi Pradesh since 2008 and Vice President of BJP Delhi Pradesh from 2003 to 2008. Ramesh Bidhuri, born on July 18, 1961, comes from Tughlakabad in South Delhi. He got a BCom degree from Shahid Bhagat Singh College under the Delhi University, followed by an LLB from Chaudhry Charan Singh University in Meerut. He was elected as an MLA from Tughlakabad in 2003, from where he served 3 terms.
His latest constitutional post came as South Delhi's MP from 2014 to 2019. After dedicating decades to the Bharatiya Janata Party and holding key roles like District President and Vice President of BJP Delhi Pradesh, Ramesh Biduri, who has represented Tughlakabad as an MLA for 3 consecutive terms, is now preparing to contest from Kalkaji constituency. The Kalkaji Assembly faces a lot of critical infrastructure developments as well as a lot of issues. Right now you can see where am I. It is the Kalkaji Assembly constituency area, and you can see that how small the streets are, how dirty the streets are, and how the people are managing to live here in such small streets. And we can say that the roads here are also broken, and there is a lot of problem regarding the open wires that you can see in the visuals as well. So yes, Kalkaji is filled with a lot of developmental issues as well, and in these very small areas there is a problem of sanitation, waste management. Apart from that, poor drainage systems lead to frequent severe overflows and also damaging the roads and worsening the living conditions of the people. So these are the conditions we are showing you from the Kalkaji Assembly area, such small areas where people are living in such broken roads from where people are managing to live here. And you can see the reality we are showing you. The roads are completely broken. The sanitation is a major problem. So this is the condition, and this is the originality of the Kalkaji constituency. And apart from that, the traffic congestion remains a big problem around the this major constituency, and it consists of various popular and famous locations as well. So it is very difficult for the people also to live in these kind of situations. So we can say that Kalkaji is filled with developmental issues, infrastructural issues, sanitation issues. Apart from that, traffic congestion, the water supply and the overall pollution problem still remains in this particular assembly. And talking about their voters, then yes, people are talking about the local issues, the problems that they are facing on a daily basis right now in this assembly. And yes, it will be the burning issues that will turn out to be the game changers for the political parties as well. It is a usual busy day in Kalkaji, and there is huge excitement in Delhi as people and supporters line up to meet their candidate Ramesh Biduri. We are in the campaign trail of BJP candidate Ramesh Biduri, and you can see the visuals as well. He is in the Kalkaji Assembly constituency right now, meeting people, and people have come here, giving him full malas and greeting him and shaking hands with him. So yes, talking about this constituency, it is a very tough fight with Atishi and Alka Lamba from Aam Aadmi Party and Congress respectively. So right now you are seeing the visuals as well, where the BJP candidate Ramesh Biduri, who is also a former member of parliament, is meeting the people and going shops to shops, and people are coming here to giving him full malas as well. So it's a campaign that Ramesh Biduri is doing in all the streets and in all the areas of the Kalkaji Assembly seat as of now, and we are joined by him as well. We'll talk to him in a bit as well. But yes, it is a very important constituency. People are showering flowers. We can see the rose petals on Ramesh Biduri here. So yes, there are a lot of supporters who have come here to meet him, to greet him as Ramesh Biduri is contesting from this particular assembly. Continuously dholwalas are here, continuous sloganeering is being happening right now, because Ramesh Biduri, the BJP candidate who is contesting in front of Atishi, the present chief minister, is campaigning, and people are coming here for his support. We spoke to Ramesh Biduri on the heated campaign, his contest against the sitting chief minister, and the burning issues in Delhi. We are joined by BJP candidate from Kalkaji, Ramesh Biduri. The controversial face right now in the Delhi Assembly elections is right here with us. Sir, सबसे पहले अगर इस चुनाव की बात की जाए तो दो महिला उम्मीदवार आपके सामने हैं, एक मुख्यमंत्री है और एक कांग्रेस का चर्चित चेहरा है. दोनों उम्मीदवारों को किस तरीके से देखते हैं, क्या टक्कर का मुकाबला समझ रहे हैं यहाँ पे? है ही नहीं. कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ तो कांग्रेस के मठाधीश नेता यहाँ पर नहीं लग रहे हैं. वो नहीं चाहते कि कांग्रेस को उन्होंने जो चुनाव लड़ा उनसे ज़्यादा वोट मिल जाए.
वो नहीं चाहते बेचारे। तो इसीलिए कांग्रेस तो लाइट से बाहर हो गई है। और आई मुख्यमंत्री जी की, वो मुख्यमंत्री एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल जी ने कहा है कि वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, क्योंकि मनीष सिसोदिया करप्शन में, शराब घोटाले में जेल चले गए, तो मनीष सिसोदिया की वो नज़दीकी होने के कारण उनको दे गए अपनी गद्दी। फिर केजरीवाल साहब घोटाले में अंदर जेल में उसी में चले गए, 6% वापस कमीशन लेकर करोड़ रुपए जो शराब माफियों से खाए, फिर वो अंदर चले गए केजरीवाल साहब। तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, मतलब रह सकते हैं लेकिन सेक्रेटरीट में नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो मजबूर हो गए, उनको आतिशी जी को बनाना पड़ा। और आतिशी पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं नीतीश सिसोदिया जी के अंदर जाने के बाद 2.5-3 साल से आपने देखा सड़कों की, गलियों की क्या हालत है। तो इसीलिए लोग ऊब गए, बदलाव चाहते हैं यहाँ पर। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही विकास रहा है, 3 बार विधायक, 2 बार सांसद, तो इसीलिए लोगों को विकास चाहिए। तो यहाँ पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मन है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि जो महिला वोटर है वो आतिशी के साथ जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन क्या फैक्टर्स लग रहे हैं जो आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाते हुए दिखाई देंगे? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या लोकल मुद्दे फैक्टर है, क्या आपके विचार में? उनका झूठ, उनका फरे झूठे वायदे कर रहे हैं केजरीवाल जी का। कांग्रेस तो पूरे देश में मरी पड़ी है, कांग्रेस को तो कोई लाइक ही नहीं करता। उसने भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने रखी थी। केजरीवाल साहब ने 10 साल में उसको आगे बढ़ाया, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, सब कुछ किया उन्होंने, जो ना बोला वही आगे बढ़ के किया। तो इसीलिए केजरीवाल साहब से नफरत हो गई है लोगों को। और आतिशी जी के बारे में मैंने बता दिया है। और ये एक फैक्ट, अब महिलाएं बहनें बहुत समझदार हो गई हैं। मोदी साहब ने जो महिला सशक्तिकरण के स्टेप उठाए, वो कभी किसी सरकार ने उठाए नहीं। अगर मिडिल क्लास की फैमिली बेटियां नौकरी करती हैं तो 6 महीने का उनको प्रस्तुति के टाइम फुल जॉब की छुट्टी देते हुए उनको सम्मान देने का काम किया है। गर्भवती बहन के लिए 21,000 रुपये पूरे देश में, जैसे किसान सम्मान निधि दी जाती है ऐसे महिला सम्मान निधि मोदी साहब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2007 से दे रहे हैं, हरियाणा में 11 साल से दे रहे हैं, महाराष्ट्र में 3-6 साल से दे रहे हैं जब से सरकार हमारी है। तो महिलाओं सम्मान के लिए और हर गर्भवती महिला के लिए हमने जो महिलाओं के लिए काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी ने आदेश दिया था कि कुपोषण किट सभी गर्भवती महिलाओं को दे। पहले हम एक दिया करते थे सांसद रहते हुए, और यहाँ पर 19,000 महिलाओं को पार्लियामेंट में दिया है वो कुपोषण किट। अब मोदी साहब ने उन किट को 6 महीने के लिए कर दिया। गर्भवती बहनों को हर महीने मिलेगी वो किट, पूरा पौष्टिक उसको आहार मिलेगा तो बच्चा स्वस्थ जन्म देगी और उनको कमज़ोर नहीं होगा तो जीवन को खतरा नहीं होगा। और 21,000 रुपये उसके खाते में डाले जाएंगे। अच्छी जगह प्रसूति में कहीं ना कहीं वो डिलीवरी के टाइम गलत डॉक्टरों के हाथों, या जो डॉक्टर कमज़ोर डॉक्टर जिन पर ज्ञान नहीं है, ऐसी माता बहनों की मृत्यु हो जाती थी बच्चे को जन्म देते वक्त, उससे मुक्ति के लिए। तो महिलाओं के लिए, जो मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक से निजात, सत्ता में भागीदारी हो, आरक्षण बिल पास करना, ये कभी कांग्रेस को याद नहीं आया। ये महिलाएं रहते हुए इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, ना आतिशी जी ने उठाई। और रही बात कांग्रेस की कैंडिडेट की, वो तो पहले चक्कर काट के जा चुकी है आम आदमी पार्टी के साथ में, वो तो देख चुकी है यहाँ का टेस्ट कैसा है। इनको टेस्ट देखने के बाद लौट के बुद्धू घर को आई है वो तो लोगों को पता है कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, सेवा के काम करती है, देश निर्माण के काम करती है, इसलिए लोग भाजपा को वोट देंगे। लेकिन आपने बहुत सी योजनाओं की बात की, बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो बयानबाजी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहा जा रहा है। आपको लेकर एक गाना भी आम आदमी पार्टी ने बना दिया कि गाली गलौज कर। केजरीवाल से ज़्यादा गाली गलौज कौन करता है? पुलिस के जवानों के बारे में क्या शब्द उपयोग किया केजरीवाल ने, मैं अपनी जबान से बोलना नहीं चाहता। उनकी पार्टी में जो छोड़ के गए प्रसाद भूषण एंड कंपनी कुमार, उनके बारे में क्या विधानसभा बोला कि उनको लात मार के, कहाँ लात मार के, वो वीडियो देख लेना आप, अनपार्लियामेंट्री भाषा बोला है ना। स्वाति मालीवाल को घर में पीटने का काम केजरीवाल ने किया है, जो महिला है। सोमनाथ भारती को कुत्ते से पत्नी को कटवाने का काम करता है। तो केजरीवाल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर संवैधानिक पद पर बैठे थे, गवर्नर वाले बारे में कैसी बकवासबाजी उन्होंने की है विधानसभा में, क्या होता है, कौन होता है, वो मैं शब्द बोलना नहीं चाहता। तो गाली गलौज पार्टी अपने कुकर्म को छिपाने के लिए, जब दोषी व्यक्ति होता है तो दूसरे पर वो आरोप लगाता है। तो गाली गलौज और वादा खिलाफी और झूठ बोलने वाली पार्टी केजरीवाल की पार्टी है। सर, आतिशी ने एक और आरोप लगाया है कि यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान आपके भतीजे, आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमका रहे हैं, ईसी को कंप्लेंट भी कर दी है। मैंने भी कंप्लेंट की, इसकी जांच होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को और पुलिस को भी। तो आप खारिज करते हैं ये सब आरोप? ये उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ कराया नहीं, क्या बोले बेचारी, क्या बोले, कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगी।
कि मेरे उन लोगों ने ज़बरदस्ती वोट नहीं डालने दिए। ये भारत का मतदाता है, ये मानता है। 3 बार हमें विधायक बनाए लोगों ने, लगातार कॉन्टिन्यूस क्यों बनाया है? अगर हमारा कंडक्ट इस प्रकार का होता, ये चंद्र प्रकाश जी हैं, कॉन्टिन्यूस 1 वार्ड से 3 बार जीतना, और किस वार्ड से, जहाँ टोटल गरीब तबका रहता है। तो ये दिखाता है आदमी की चरित्रता और क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को। तो उनके इस बयानबाजी के लिए अपने ही लोगों से वीडियो बनवा कर पुलिस जांच कर रही है। साइबर डिपार्टमेंट रिपोर्ट देगा। अपने ही 2 कार्यकर्ताओं से उनकी वीडियो क्लिपिंग भी आ गई है कि आतिशी ने कहा तुम बस रिकॉर्डिंग कर दो एक बार, वो भी फंसेंगी। जो एक उनका कार्यकर्ता है, उनका वो खुद जेल जा चुका है, गैम्बलिंग के मामले में जेल काट के आ चुका है। उनके दोनों बेटे जेल जा चुके हैं। किसी परिवार पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए बच्चों पर। तो उनका कैरेक्टर कैसा है? तो गुंडे कौन हुए जो जेल जा चुके वो, या गुंडे ये हुए कि जो ना CCTV कैमरे में मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है? कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, जब मैं MLA था, तब कांग्रेस ने मेरे खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी थी, या मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी थी? तो ये बेबुनियाद बातें हैं, लोग जानते हैं हमारा कंडक्ट। और अभी आप एक ट्रांजिट कैंप में है, गरीबों की बस्ती है, देखा हमने हजूम, एक 5 बूथों में और 200 कार्यकर्ता, 50 बहनें साथ चल रही हैं 2 घंटे तक लगातार से। क्यों चल रही है? उनका प्यार है हमारे साथ। एक सवाल लगातार बना हुआ है सीएम चेहरे को लेकर। पहले आम आदमी पार्टी कह रही थी कि रमेश बिधूड़ी है सीएम चेहरा, लेकिन अब खुद ही सवाल उठा रही है कि बिना दूल्हे की पार्टी है ये। तो सच्चाई क्या है, क्लियर कर दीजिए आज। आम आदमी पार्टी अपने गिरबान में झांके, मुख्यमंत्री को कह रहे टेम्परेरी मुख्यमंत्री, खुद कह रहे हैं, और केजरीवाल साहब खुद मुख्यमंत्री बनने को कह रहे हैं। मैं कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप तो उसमें जा ही नहीं सकते। तो कब तक दिल्ली के लोगों को धोखा देंगे? और आम आदमी पार्टी का बराबरी भाजपा से ना करें प्लीज़। भाजपा नेशनलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा में काम करने वाले लोग पद के लिए काम नहीं करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। परिवार में कौन व्यक्ति क्या बढ़िया काम करता है, ये और अच्छा कर सकता है, तो ऐसे दायित्व परिवर्तन होते हैं। मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा लेके चल रहे हैं, अभी इच्छा है आप? मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद बनाया, 27 साल से लगातार पदों पर हूँ पार्टी के में। एक सामान्य परिवार से निकल कर आने वाले व्यक्ति, और उसको पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, तो हमें पद बहुत दिया मेरी पार्टी ने मुझे। तो हम जैसे 3 बार विधायक रहते, तुगलकाबाद विधानसभा के एरिया में सेवा की है, वैसे ही कालका जी में आने के बाद हम सेवा करने के लिए आए, पद के लिए नहीं आए। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। लगातार जब मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया तो एक आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, लेकिन आपके बयान कुछ सामने आए, चाहे वो प्रियंका गांधी को लेकर हो या आतिशी के पिता को लेकर हो, तो अब आपको महिला विरोधी बोला जा रहा है। तो उन बयानों को किस तरीके से आप बताएंगे? आतिशी का पिता महिला है, आतिशी का पिता महिला है। ये मीडिया आप कुछ भी बोल देते हैं जी। हम नहीं बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी बोल रही है। आपने एक तरफ तो कहा महिला विरोधी, एक तरफ आतिशी का पिता। लेकिन आपका बयान था जब आपने आतिशी के पिता को लेकर बोला। बहन सुनो, जब अफजल गुरु को फांसी लगी थी, उनकी फांसी की मर्सी पिटीशन किसने दी? आतिशी के पिता और माँ ने। आतंकवादी और आतंकवादी को समर्थन करने वाला आतंकवादी होता है ना, महिला होता है ना, पुरुष होता है ना, पिता होता है ना, बेटा होता है, वो आतंकवादी होता है। प्रियंका गांधी के बयान पे भी बता दीजिए। So see, this was Ramesh Biduri was talking with us. He talked about a lot of issues. He talked with us, but on the issue of Priyanka Gandhi, the comment that he made on Priyanka Gandhi, he didn't answer that. His supporters made us aside of not asking that question. So yes, Ramesh Biduri has not answered that particular question. So this is the candidate, the BJP candidate who is fighting from the Kalkaji Assembly seat. A lot of controversies are going on right now, but on the questions of Aam Aadmi Party claiming that Ramesh Biduri is Mahila Virodi, and on the comments that Ramesh Biduri did on Priyanka Gandhi, he did not comment on that. We then spoke to the people, mostly locals and vendors, on what their priorities are. We are in the Kalkaji Assembly right now, and we are here to check the pulse of the voter from the Kalkaji Assembly constituency. A lot of people are here. We will try to talk to them and have an understanding that what all problems do they think are here in this assembly, and also regarding the candidates, the 3 candidates who are contesting from this VIP seat. Sir, 3 चेहरे लड़ रहे हैं, तीनों VIP हैं, चाहे वो रमेश बिदूड़ी हो, आतिशी हो या फिर अलका लांबा हो। आपकी पसंद कौन है और क्यों है? हमारी पसंद तो रमेश बिदूड़ी जी हैं। कारण क्या है? कारण यही है मैडम, अभी देख लो इलेक्शन चल रहे हैं, वैसे मैडम कभी आती नहीं थी, है ना। अभी देखो इलेक्शन में हर जगह पहुंच रही हैं, कहीं केक भी कट रहा हो ना बच्चे का, वहाँ भी पहुंच जाती हैं वो। हाँ, इलेक्शन के लिए हर कोई आ रहा है।
सिर्फ इलेक्शन के लिए आती हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए आ रही हैं आतिशी यहाँ पर, और किसी काम से नहीं आई? इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वैसे कभी दिखते नहीं है कोई भी। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है सर, मैं आपसे समझ रही हूँ, इस कालकाजी विधानसभा में क्या है? केजरीवाल की सरकार आई है तब से समस्या ही समस्या है। रोड का हाल देख लो, पानी नहीं आता है, जबकि वो पानी बिजली कहता है कि हम फ्री कर देंगे। और सारे जब से वो आफत है, वो केजरीवाल आफत बन के आया है दिल्ली पर, इसलिए इसको ये जड़ मूल से नाश करना है इसको। की बार डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल, इस बार भी यूपी का हाल देख लो आप, बीजेपी की सरकार है तो वहाँ क्या माफिया साफ हो गया, सारे काम कितने अच्छे हो रहे हैं। यहाँ तो इसने माफिया को पनपा दिया दोबारा, कांग्रेस के माफिया और ये दोनों ए और बी टीम है। बीजेपी आएगी इसको साफ कर देगी। We'll try to talk to some vendors also who are present here and have an understanding with them as well. सर, आपकी पसंद कौन है? यहाँ पर 3 मुख्य कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आतिशी है, रमेश बिधूड़ी है और अलका लांबा है। आपकी पसंद कौन है? रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी है। क्यों है आपकी पसंद? क्योंकि भाई बीजेपी है, सारे काम मोदी जी ने भी काम अच्छा किया है, देश के लिए अच्छा काम करते हैं। कोई आतिशी ने कोई काम किया है यहाँ पर? आतिशी जी ने काम किया है, उन्होंने भी काम किया है, और देश के लिए मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगे, आपकी पसंद कौन है? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2100 रुपया भी दिया जाएगा और बीजेपी कह रही है 2500 रुपया दिया जाएगा। आपकी पसंद कौन है? कोई बात नहीं, कोई सभी अच्छे नेता हैं, जो नेता बन जाएगा वही अच्छा है हमारे। आप किसको बनाएंगे यहाँ का विधायक, क्योंकि वही आपकी दिक्कत सुनेगा कि आपको क्या समस्या हो रही है? समस्या बहुत सारे हैं, सब ठीक है। So these are the pulse of the voters right now who are present here. One chai wala is also here. We'll talk to him also. Sir, आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद बीजेपी। बीजेपी है आपकी पसंद। यहाँ पर एक ही आवाज़ में सब बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के हम तो जी शुरू से ही, हमारे माता पिता भी बीजेपी को ही वोट डालते थे और हम भी बीजेपी को ही वोट करते हैं। मोदी जी हमारी चॉइस है। लेकिन मोदी जी यहाँ पर काम करेंगे या विधायक काम करेगा? किसके नाम पर वोट देंगे, मोदी जी के नाम पर या कैंडिडेट के चेहरे पर? बीजेपी को। बीजेपी को वोट, पार्टी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। आतिशी ने कुछ काम किया है इस विधानसभा में? जी इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। So these are the pulses that we are getting right now. People are talking about Bharatiya Janata Party in one voice. आप क्या कहेंगे, आपकी पसंद कौन है और क्यों है? मेरी पसंद तो बीजेपी है, बहुमत तो बीजेपी को ही वोट जाएगा हमारा। आम आदमी पार्टी ने यहाँ तो कुछ नहीं किया, काम उनके घर पे हुआ है, जो उनके वोटर हैं, 2-4 गिनती के वोटर हैं, उन्हीं के घर पे काम हुआ है, उन्हीं के घर पे क्या नाम है कैमरे लगे हैं, उन्हीं के घर पे नल है। और पूरी कॉलोनी में आप जाकर देख लिए, कहीं भी नल का पानी ऐसे ही बह रहा है। गंदगी इतनी हो रही है, गंदगी तो मतलब बहुत ज़्यादा है। अब तो हम तंग हो गए। मैडम जी को तो हमने 10 सालों में देखा ही नहीं, अभी अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इलेक्शन में आती है, इलेक्शन में आ रही है, अभी तक 10 सालों में देखा ही नहीं हमने। That's all for this episode of Road Stop on News X. I'm Mehendi Garg signing off with camera person Ankush, but keep watching our non-stop coverage on Delhi elections.